Hello everybody and welcome back to my educational channel Excellence Tutorials, a place where every query is answered. If you have not subscribed my video, kindly subscribe it and also don't forget to press the bell icon. And also don't forget to share and like my video as your share and like gives me motivation to strive hard to upload more videos. So in this video I'm going to explain you part second of chapter 8. That is, the name of the chapter is Reach for the Top. Part second is about Maria Sharapova. Part first I have already uploaded. If you have missed it, I would share the link in the description box. The part first was about Santosh Yadav. Okay, so let's start with part second, Maria Sharapova. Everybody knows Maria Sharapova. She is a world famous tennis player. So let's start. There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. Disarming. The meaning of disarming is likable. Underline and write it. At odds means in contrast. So, the meaning of it is there is some quality in contrast to Maria Sharapova's smile and glamour which makes her likable. ऐसी कोई क्वालिटी है उसकी स्माइल और ग्लैमर के अलावा, उसकी ग्लैमरस स्टाइल के अलावा, जो उसे लाइकेबल बनाती है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. And इसी क्वालिटी ने उसको अपलिफ्ट किया, उसको हेल्प किया सक्सेस अचीव करने में, और वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन वुमेन टेनिस के पोजीशन पर आ गई थी. कब? 22nd अगस्त 2005 में. All this happened in almost no time. ये सब कुछ बहुत ही जल्द, very fast it happened. Poised beyond her years. Poised means calm. C-A-L-M, calm. She was very calm. Calm means बहुत ही शांत थी. Beyond her years मतलब उनकी उसकी उम्र की और लड़कियाँ और बच्चे इतने शांत नहीं होते, इतने काम नहीं होते हैं. The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. And this Siberian-born teenager means that she was a Siberian girl. उनका जन्म कहाँ हुआ था? साइबेरिया में. और उन्हें सिर्फ 4 years लगे थे एक ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशनल. 4 years की ट्रेनिंग में वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे आ गई थी. पिनाकल मीन्स टॉप मोस्ट पोजिशन. सिर्फ 4 years की ट्रेनिंग में शी रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before. पर ये जो फास्ट ग्रोथ कैरियर का हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? 9 years before. With a level of sacrifice few children would be prepared to endure. सेक्रीफाइस के साथ स्टार्ट हुआ था. शी मेड अ वेरी बिग सेक्रीफाइस विच कैन बी मेड बाई वेरी फ्यू चिल्ड्रेन. उनके एज के बहुत कम बच्चे उस सेक्रीफाइस को कर सकते हैं. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अभी तक वो 10 साल की भी नहीं हुई थी कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ गया था. The trip to Florida with her father Yori launched her on the path to success and stardom. उनकी ये ट्रिप कहाँ के लिए थी? कहाँ चले गए थे वो? यूएस में. फ्लोरिडा. किसके साथ? अपने फादर योरी के साथ. और यहीं से उनका टेनिस करियर शुरू हुआ था. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना. पर इसके लिए उन्हें बहुत ही दुख सहना पड़ा था, बहुत ही सैड मोमेंट था. वाई? बिकॉज वो अपनी मदर येलेना से 2 साल के लिए सेपरेट हो गई थी. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. उनकी मम्मा को साइबेरिया ही रहना पड़ा था 2 साल के लिए. क्यों? क्योंकि उनका वीज़ा रेस्ट्रिक्शन था, उन्हें वीज़ा नहीं मिला था यूएस का. द 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. सो जो 9 साल की ये लड़की थी, ऑलरेडी उसने लर्न समझ गई थी टेंडर एज में, इतनी कम उम्र में ही वो समझ गई थी क्या कि अगर उन्हें टेनिस में अपना नाम करना है तो उन्हें बहुत सी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी.
आई यूज्ड टू बी सो लोनली, वो बहुत ही लोनली थी मतलब अकेला महसूस करती थी। मारिया शेरापोवा रिकॉल्स, रिकॉल्स मतलब याद करती है, मेमोराइज कर रही है वो। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, वो अपनी मम्मा को बहुत मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही couldn't see me either. His father used to work very hard ताकि उसकी टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे, उसे जितना भी पैसा चाहिए उसके नीड्स मीट कर सके वो, इसलिए वो भी उससे इतना मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, वो बहुत ही छोटी थी ना, तो वो 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपल्स, और बाकी के जो टेनिस स्टूडेंट्स थे, प्यूपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, वुड कम एंड एट 11 PM, वो 11 PM आते थे। एंड वेक मी अप, वेक मीन्स गेट मी अप, वो उन्हें उठा देते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कहते थे कि रूम को सही करो, क्लीन करो। इंस्टेड ऑफ letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. अब इतना होने के बाद अगर और किसी के साथ होता तो वो क्या होता, वो बहुत ही डिप्रेस हो जाते। बट इंस्टेड ऑफ लैटिंग, बट डिप्रेस हो जाते मतलब सैडन हो जाते। मारिया डिड नॉट गेट डिप्रेस्ड, पर मारिया इन सबसे डिप्रेस्ड नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। इंस्टेड, उसके अलावा शी बिकेम डिटरमाइंड, वो पक्के इरादे वाली बन गई और मेंटली टफ स्ट्रांग हो गई वो। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने अपना ध्यान खुद रखना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, उन्होंने कभी भी क्विट करना नहीं सीखा। क्विटिंग मीन्स लिविंग, शी नेवर थॉट ऑफ लिविंग, लिविंग वॉट, लिविंग टेनिस। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए था, उन्हें टेनिस में अपना नाम बनाना था। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very angry and determined. क्या कह रही है वो? When a person has nothing, जब एक पर्सन के पास कुछ नहीं होता, he craves, वो उसके लिए बहुत ही क्रेव करता है, उसे उसकी भूख होती है। एंड बिकम्स डिटरमाइंड, और वो पक्के इरादे वाला बन जाता है क्योंकि उसे वो चाहिए ही। ओके, तो वो भी वैसे ही हो गई थी। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. अब वो क्या कह रही है कि she says that she would have borne, वो और भी ग्रेट ह्यूमिलेशन, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट भी वो सहन कर सकती थी इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, वो टफनेस आज भी उनके खून में है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004, यही वो की है, यही वो राज है जिसकी वजह से वो विंबलडन 2004 में जीत पाई थी और बहुत जल्द वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन में आ गई थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, इनकी जो जर्नी थी साइबेरिया से लेकर के एक वुमेन टेनिस में नाम करने की, उससे बहुत सारे फैंस बहुत ही टच्ड हैं। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, पर वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल इमोशनल नहीं होती है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। उनके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं उससे पता चलता है क्या, कि वो क्लियर है कि ये जो सेक्रीफाइस, ये तो बलिदान उन्होंने दिया है, वो वर्थ थे, वो मायने रखते हैं। आई एम वेरी कॉम्पिटेटिव, वो कहती है मैं बहुत ही कॉम्पिटेटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी करती हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। एंड इट इज़ माई जॉब, और यह मेरा काम है। इसी हार्डवर्क की वजह से मैं नंबर 1 पोजीशन पे आई हूँ, और यही दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, यही वर्क हार्ड इज़ अ मंत्रा फॉर सक्सेस। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन असेंट, वो अमेरिकन असेंट में बात करती है। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, पर वो अपनी रशियन नेशनलिटी के बारे में बात करते हुए कभी शर्माती नहीं है, वो प्राउड फील करती है। रशियन नेशनलिटी के बारे में बताते हुए वो प्राउड फील करती है, डिस्प्ले करती है वो अपनी रशियन नेशनलिटी को। ओके, हमेशा क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, वो डाउट्स क्लियर करती दैट आई एम नॉट एन अमेरिकन, आई एम एन रशियन। इट्स ट्रू
दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो ये सही है कि यूएस बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, पर मैं एज अ सिटीज़न रशिया के सिटीज़न हूँ, मेरे पास नागरिकता कहाँ की है, रशिया की है, और मेरा ब्लड टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर रशिया चाहे तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स भी खेलूँगी। ऐसे वो कहती है। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शेरापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज अ हॉबीज। बाकी टीनेजर्स की तरह मारिया शेरापोवा के लिए भी फैशन, सिंगिंग और डांसिंग उनकी हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, हर फाउंडनेस फॉर सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, उन्हें भी सोफेस्टिकेट इवनिंग गाउन्स, सोफेस्टिकेट मीन्स फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहनना उन्हें भी बहुत पसंद है, बाकी आम लड़कियों की तरह। ओके, अपीयर्स एट ऑड्स विथ अ लव ऑफ पैनकेक्स, और कोई नहीं बिलीव कर सकता अपीयर्स एट ऑड, बट इट इज़ अनबिलीवेबल दैट शी लाइक्स टू ईट पैनकेक्स एंड चॉकलेट्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। कोई उसके लुक को, उनकी फिट बॉडी को देख करके कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उन्हें भी चॉकलेट स्प्रेड किए हुए पैनकेक्स बहुत पसंद है, और वो भी फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स लेती हैं। मारिया शेरापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शेरापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड, पिजन होल्ड मीन्स क्लासीफाइड, कभी उनको क्लासीफाइड नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर, अनवेवरिंग मतलब स्टडी फर्म डिज़ायर है उनका, कोई उनके डिज़ायर को, उनके विश को हिला नहीं सकता। टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो किसकी वजह से आई है, उनके टैलेंट की वजह से, उनके अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड और उनके रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, ये तीनों चीज़ की वजह से ही वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ पाई है। फ्यू वुड ग्रज हर, ग्रज मीन्स अपोज, कुछ लोग अपोज करेंगे। हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग, वो जो नाम उन्होंने कमाया है उसको कई लोग अपोज कर सकते हैं। नो वन विल अपोज द बेनिफिट दैट शी इज़ गेटिंग नाउ, नो वन कैन अपोज द बेनिफिट जैसे शी इज़ गेटिंग नाउ, वाई, बिकॉज शी हैज़ मेड मैनी सेक्रीफाइसेस टू गेट दैम, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किया है उन्होंने। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। शी सेज दैट, क्या कहती है वो, दैट मनी डज मोटिवेट हर टू वर्क हार्ड। ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, क्या कहती है, ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, ऑफकोर्स मनी उन्हें मोटिवेट करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस बोथ एक बिजनेस एक स्पोर्ट, बिजनेस भी है स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। पर जब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उनके लिए क्या था, नंबर वन पोजिशन पे पहुंचना, टू रीच द टॉप स्पॉट, दैट्स द ड्रीम दैट कीप्ड मी गोइंग, यही वो सपना था। इट वॉज दिस ड्रीम दैट कैप्ट हर वर्किंग फर्दर, जिसकी वजह से वो निरंतर प्रयास करती रही। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, दैट हमें काबिलियत होनी चाहिए, दूसरा हमारा अनवेवरिंग डिज़ायर, हमें सक्सेस पाने के लिए अनवेवरिंग डिज़ायर चाहिए, तीसरा सेक्रीफाइस, वी शुड बी ऑलवेज रेडी, हमें हमेशा रेडी होना चाहिए कि हमारे सक्सेस के लिए हमें सेक्रीफाइस करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।